So here we were talking about China and Taiwan. So China again wants to control Hong Kong also और Taiwan. तो इसके पीछे एक important reason ये भी है कि they are very important locations strategically also from the perspective of trade. So these are again they lie on the important sea lanes of communication. Like Hong Kong की बात करते तो it lies in the South China Sea, and so they are at cross trade relations, rejection of a possible one country two systems solution जो बोलते हैं. बट अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि जियोपॉलिटिकली चाइना के लिए कितने सारे चैलेंजेस उठ जाएंगे, उसके बाद भी व्हाई चाइना वांट्स टू कंट्रोल ताइवान। क्योंकि अगेन चाइना ताइवान को अपना एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं ना, बिकॉज वी आर अगेन सीइंग कि यूएसए की भी प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है, यूएसए का भी रोल, या रिसेंटली जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट करते हैं ताइवान में, तो अगेन वी सी की कुछ ऐसी मॉक ड्रिल्स चाइना करना स्टार्ट कर देता है अराउंड द रीजन क्लोजर टू ताइवान. तो चाइना, व्हाई वुड चाइना वांट टू लूज ताइवान? बिकॉज अगेन वो एक इंडिकेशन होगा, या दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इवन फॉर, इट वुड रिफ्लेक्ट डिफीट ऑफ चाइना. तो इट इज अगेन एज चाइना वर्सेस यूएसए है, तो यूएसए भी चाहता है कि ताइवान इंडिपेंडेंट रहे, तो ताइवान की सोवरेनिटी को यूएस सपोर्ट करता है. और जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, अगेन जो कुछ क्रूशल एरियाज है जो चाइना के अगेन बिलीव करता है कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स वो बना रहे हैं, वहाँ पे अगेन दे आर डिप्लॉइंग देयर डिफेंस फोर्सेस ऑल्सो. देन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन राइट्स है वहाँ पे वायलेशन है. चाइना मानता है कि जो 9 डैश लाइन है वो पूरा एरिया चाइना का एंटायर साउथ चाइना सी का जो रीजन है. एंड देन अगेन उसी में हांगकांग एंड ताइवान दे लाए, तो इसीलिए दीज आर सर्टेन एरियाज इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योरिटी एंड बैलेंस की हम बात करते हैं तो. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड इन केस ऑफ ज्योग्राफी, अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो ताइवान जैसे ऊपर है, उसके जस्ट नीचे फिलीपींस, देन फिलीपींस के साउथ वेस्ट साइड में ब्रूनी, एंड देन ब्रूनी के साइड में मलेशिया, एंड देन वियतनाम. सो ताइवान, ताइवान के नीचे फिलीपींस, देन ब्रूनी, देन मलेशिया. यस. और इम्पोर्टेंट Also, चौक पॉइंट्स भी मेंशन कर दो. One is Malacca Strait, then Strombo Strait is also there, an alternative to Malacca Strait जो हम बोलते हैं. And one is also a Lombok Strait, which is an important choke point. Yes, प्रेरणा क्या बोल रहे थे आप? मानसी जी, जैसे अगर आइलैंड पे कंट्रोल रहेगा ताइवान पे, तो फिर ओशनिक जो रिसोर्सेज है वो भी मतलब ज्यादा मिलेंगे चाइना को. Yes, एंड ऑल्सो लैंड होएगी तो इन फ्यूचर दे कैन यूज इट. yes, ठीक है. So India don't need wolf warriors. So moving closer to China, so it's quite possible कि जो comments of the Maldivian officials were deliberate, as they were made before the visit of the Maldivian president Mohammad Muzi. We seen recent presidential elections where Maldives में Mohammad Muzi he came to power, and it is believed that he is more pro-China. So is more pro-China stand compared to his predecessor, and promised to remove Indian troops during his again election rallies from the Maldives. And अभी जो हमने recently we saw a meeting between India and Maldives, तो again वहाँ से भी Maldives के साइड से ये चीज़ highlight की गई कि 15th March तक, given the timeline to withdraw the Indian troops. So China and Maldives also elevated their bilateral ties to comprehensive strategic cooperative partnership. So given this, again India has to be again in that wait and watch mode, because Maldives, it is located in Indian Ocean region. So even from the perspective of entire maritime security, Maldives and its diplomacy, its foreign policy, and its engagement with different countries becomes important from the perspective of India. Secondly, we say again from the perspective of the exploitation, the natural resources. If again China's assertiveness, its influence grows more in the Indo-Pacific region. Yes, Indian Ocean is a part of Indo-Pacific region, so that would be creating more problem for India. As we say, China follows the ocean, the pearl of oceans theory. So India follows the diamond necklace theory counter to that. So this would be again, it can also disrupt the sea lanes of communication, the trade flows, because we again see कि major part, more than 50% of the trade it passes through the Indian Ocean region. So given the location of Maldives, it is important how India is going to again manage, and again Belt and Road Initiative can be, can say, a challenge for India in the
growing proximity, and we have also talked about कि Maldives owe huge amount of debt to India. So how we can, completely shut our relations with Maldives, given it has to repay the debt to India, and given that China's debt diplomacy that it uses, as we saw the situation in Sri Lanka, it led to economic crisis. So it might lead to similar kind of situation even in Maldives. So even from this perspective, also it can create problems for India. So we say कि एक डिस्टेंस स्टैंड होना चाहिए, but again we need to be in wait and watch mode and ensure कि India is looking into each and every changes and aspects which are visible in Maldives. So India's relationship with Maldives built over time is comprehensive one. So Maldives को भी India चाहिए. It is not just कि China के आने से या solely it can depend upon China, because Maldives के भी जो उसकी खुद के जो इंटरेस्ट है वो भी हैम्पर होंगे अगर डेट डिप्लोमेसी, वी नो कि कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि चाइना कैसे डेट डिप्लोमेसी फॉलो करता है, कैसे उसका अल्टीमेट रिजल्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ही होता है. तो इट इज ट्रू दैट इंडिया ऑल्सो नीड मालदीव्स इक्वली. So Maldives, India का key maritime neighbor है Indian Ocean region में. It is also consistently taken pro-India positions in even the Organization of Islamic Cooperation. And also Maldives an important country जब हम बात करते हैं Colombo Security Conclave की भी, तो India, Sri Lanka and Maldives are party to this security agreement and norm builder in the new world order. So India desires to be having this kind of role in the new world order. Norm builder, हम norm build करना चाहते हैं. जैसे we India wants to have a blue navy, or we say कि we are the net security provider in the region. So that's there. We're having Sagar policy for that. So there has always been Also, competition between the desires. Yes, Karuna. आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसा आपने स्टेट किया कि इंडिया को वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, बट आपको नहीं लगता है कि जितना प्रोएक्टिवली चाइना वर्क कर रहा है कि इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करते हुए स्ट्रैटेजिकली अभी से ही इन्वॉल्व होना चाहिए मॉलडीव्स के साथ एंड वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहिए? नहीं, सॉफ्ट पावर इंडिया अभी कैसे यूज कर सकता है जब मालदीव बोल रहा है कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल्स को विड्रॉ कर लो, एंड वहां की जो अगेन करंट भी गवर्नमेंट है दैट इज मोर प्रो चाइना, तो आप कैसे सॉफ्ट पावर की यूज करोगे? क्योंकि आई थिंक मॉलडीव्स के लिए अगर हम इंडिया का रोल की बात करें तो स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी में बहुत ज्यादा मॉलडीव जो है वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर हाँ एंड राइट, इंडिया वो को हमने बात कर लिया कि दोनों पार्टनर्स एक एक दूसरे के लिए चाहिए. इट इज नॉट कि खाली मालदीव्स को ही इंडिया चाहिए, इंडिया को ही ओनली मालदीव्स चाहिए. तो इट इज बायलेटरल. तो दोनों ही, वी आर नॉट शटिंग आवर रिलेशंस विद मालदीव्स. But according to me, India should strategically work with Maldives instead of just following what wait and watch policy. यस, जो अभी हम बोले कि करंटली जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, वी हैव प्रेजेंटेड लक्षद्वीप एज एन ऑल्टरनेटिव, तो दैट वुड आल्सो सेंड अ सिग्नल टू मालदीव्स कि मालदीव्स की इकोनॉमी मेजरली डिपेंडेंट अपॉन टूरिज्म है. तो सडनली जो इम्पैक्ट होगा मालदीवियन इकोनॉमी को, दे विल आल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप फॉर देम. एंड अगेन हिमांशु जी एक इसको, रेड समझो हाँ जी, दैट लक्षद्वीप में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एज कम्पेयर टू मॉलडीव्स बिकॉज हाँ अभी टिल शॉर्ट टुडे टर्म के मतलब लिए यस वो चैलेंज एग्जिस्ट करता है. बट अगेन रिसेंटली वी हैव आल्सो सीन टू मेजर प्रोजेक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड. वी आर सीइंग टाटा ग्रुप और द ताज होटल्स, दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क. बट अगेन कुछ एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ना टूरिज्म पे जब हम बात करते हैं. एक तो इट वाज हैपनिंग डायरेक्टली जो मेजर स्केल पे मालदीव टूरिज्म प्रमोट हो रहा था. अब कुछ शिफ्ट तो होगा, कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा. यस जी एंड ऑल्सो अगर लैंड एरिया की बात करें तो लक्षद्वीप का इट इज प्रिटी लेस देन मॉलडीव्स. यस, हाँ वी से कि लक्षद्वीप इज कोरल अटॉल्स, एक कोरल आइलैंड है, पूरा कोरल से ही बना हुआ है. Kavaratti is the capital and Minicoy Island is the southernmost island in Lakshadweep. 38% patients on more than one antibiotic, NCDC survey. So this has been created the problem of antimicrobial resistance कि आप एक ही एंटीबायोटिक को
कैजुअली लेते रहते हो, अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ तो आप कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हो, तो दिस हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम. सो नाउ विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन द डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. सी अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये कि बॉडी में ऐसी एक काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट कैजुअल इनटेक ऑफ द मेडिसिन, जो न्यू ट्रीटमेंट्स है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी वो रिस्पॉन्स नहीं देती है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, हमारा इम्यून सिस्टम उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है. सो those who were admitted for the daycare procedures excluded from the survey. So pathogens are, we can say, the vectors or the factor which is responsible for causing diseases in the human body. So they are pathogens like viruses, bacteria. These are examples of pathogens. Fungi, they become resistant to drugs that were used against them, and तो infections और ज़्यादा harder हो जाते हैं and more expensive to treat also. तो पैथोजेंस अपनी एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, बिकॉज अगेन उनको पता लग जाता है कि बॉडी में एक ही एंटीबायोटिक आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है, तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट एबल टू फंक्शन इन द बॉडी एंड परफॉर्म एज दे शुड. सो WHO ने भी दे हैव ऑल्सो पुट कुछ ऐसे ड्रग्स हैं वॉच लिस्ट पे जिनमें ऐड किया है विच आर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. They are reserved for only severe infections, then only you can go for them. And last choice antibiotics, so they've been categorized. एंड यहाँ पे वी कैन ऑल्सो से जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, इट इज द रूट कॉज ऑफ दिस इज ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो हम यहाँ पे डॉक्टर्स की नहीं कर सकते कि जहाँ पे सिर्फ इसेंशियल है वहीं पे यूज हो. हाँ, और इतनी इजीली भी एंटीबायोटिक्स फिर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए ना. यहाँ पे ये रिफॉर्म भी होना चाहिए कि जो केमिस्ट से वी इजीली गेट दीज एंटीबायोटिक्स, वहाँ पे भी यही होना चाहिए नॉर्म कि इफ यू हैविंग द प्रिस्क्रिप्शन देन ओनली दैट मेडिसिन वुड बी मेड अवेलेबल टू यू. बट ऐसा नहीं होता है. So that is also one of the factors. Easy availability, cheap cost है, generic medicines हैं. So we do not prefer to go for a doctor's prescription. So the dip in the tea exports from India during January to October 2023, 1.65% is in the dip. And यहाँ पे अगर हम टी सेक्टर की बात करते हैं तो we've seen the challenges. Firstly, the productivity, low productivity is a problem. Then uncompetitive prices is a problem, and infrastructure is another problem. Then the wages of the workers, which are the laborers working in the tea estates, is a problem. And climate change has been the major problem also, the reason behind low productivity. And recently, geopolitical reasons behind less demand for the tea is also an issue. So shipments to Iran, they are in jeopardy due to the payment problem also. So here, that's there. Again, we are saying कि internationalization of rupee होना चाहिए, तो payment problems are this. Iran imports 20% of India's tea exports. So that has become almost zero. So you can imagine the impact कि आपके पास इतना tea production है कि उसको buyers नहीं है market में. Supply is more, demand is less. That would also be responsible for the crash in the market prices for tea. करुणा कुछ टी के साइड में एक आर्टिकल है छोटा, बैंक अकाउंट्स okay. साइबर Bank accounts linked to cyber criminals which were frozen. So 8,600 ऐसे बैंक अकाउंट से जो हम ट्रेस कर पाए फॉर द फिशिंग एक्टिविटीज, जो साइबर क्रिमिनल से we were able to trace the linkage, so they were frozen. So this is again an important step when we talk about curbing the cyber crimes. And more often we are seeing कि right now cyber criminals they rely more on cryptocurrencies in the payments because वहाँ पे आप track नहीं कर सकते हो. That is also in the negatives of cryptos. 10th schedule of the Constitution Anti-Defection Law 1952 में under the 86th Constitutional Amendment Act it was implemented. And इस टाइम पे हम जो बात करते हैं mention 52nd Constitutional Amendment Act 1985. So whip जो है whip of the party. So Karuna, whether this is a convention in India or it is mentioned in the business rules of the houses or any particular law? I'm not aware about it. I have to look into it.
Okay, so whip is a convention in India. It is not mentioned in law, any provision, any rule. So this is a convention. So whip का main role, main function ये होता है कि in order to maintain the attendance of the political representative in the legislative house and how basically you have to vote. So whip is a member of the legislature party in a house who's appointed as such by the respective political party. तो हर एक political party का एक whip एक individual होता है. And so एक तरीके से entire organization the parties including legislatures तो एक तरीके से leadership की तरह act करता है. And two exceptions are there in the 10th schedule जब हम anti defection की बात करते हैं कि first is if 1/3 of the member of कोई political party के split होते हैं to form a separate group. तो उस केस में एंटी डिफेक्शन इम्पोज नहीं होगा. तो जब स्प्लिट होता है तो नंबर इज 1/3. एंड सेकंड, अगर मर्ज हो रहा है विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी तो उस केस में अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होना चाहते हैं तो द नंबर इज 2/3. तो उस केस में भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. तो ये दो एक्सेप्शंस है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. सो सपोज आप मर्ज नहीं कर रहे हो, आपने एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना ली तो उसमें 1/3 मेंबर्स है, मर्जर में 2/3. एंड सुप्रीम कोर्ट केस KM Singh versus the Speaker of Manipur recommended Parliament amend the Constitution to vest these powers in independent tribunal headed by the judges. So because यहाँ पे concerns ये थे कि कुछ ऐसे पास में incidents हुए जहाँ have hardly inspired confidence with speakers favoring the ruling dispensation. तो in terms of disposal of such cases and investigation तो यहाँ पे बोला गया कि for investigation पार्लियामेंट को अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो पावर्स हैं they are there in the independent tribunal body which is headed by judges. And एक और important case है with this which is Kyoto Holohan case. And this we're seeing कि और एक और जो important Supreme Court judgment Sadiq Ali versus Election Commission 1971 3-test formula was laid down determining कि कौन सा faction would be recognized as original political party by Election Commission. तो एक तो ये जो पावर्स है ऑफ डिटरमाइनिंग कि कौन सी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी होगी आफ्टर द स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी. सो वहाँ पे पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन. एंड अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स है जो शिंदे लेड फैक्टन है, एकनाथ शिंदे जो करंट चीफ मिनिस्टर है. सो दैट इज द ओरिजिनल वी कैन से शिवसेना जो रिकग्नाइज की गई है. एंड जो शिवसेना जो अभी ये बने हैं एक साथ शिंदे के जो वैकेंसी की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने स्प्लिट किया था फ्रॉम दिस ओरिजिनल पार्टी जो पहले शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी थी. तो जो ग्रुप स्प्लिट हुआ वो अब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हो गई है. एंड रिगार्डिंग व्हिप, क्या ऐसी भी कोई कंडीशन होती है जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है? हाँ आई थिंक होती है ऐसी कंडीशन. आप मेंशन कर दो. आई थिंक जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं हाँ उसमें वहां पे. राइट राइट. So misuse of the dominant power by PVR. So we associate PVR with the cinema. So हमने देखा कि अगेन एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशंस की हमने बात करी. इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट है. हमने बात करी थी गूगल की कि कैसे एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में गूगल अपने ऐप्स को पहले प्री इंस्टॉल कर देते हैं. तो यहाँ पे भी वी आर सीइंग अनदर एग्जांपल PVR का अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन. वी आर सीइंग कि it utilizing its dominant position the film exhibition market. So preferential treatment दिया गया to the films of the powerful and monetarily affluent production houses. So this is again not a competitive and fair competition is not visible in this thing. So producer, distributor, producer, exhibitor, producer, distributor, exhibitor relationship. Different levels पे production chains they function. So PVR ने clarify किया कि there is no special types like जो allegations लगाए जा रहे हैं. So screen allocation जो होता है it is determined on mutually objective criteria. So this primarily entails कि क्या revenue generation हो सकता है, revenue generation potential of the movie. So उस basis पे screen allocate की जाती है. So Competition Act is there in India.
And so CCI, as I mentioned, Competition Commission of India, concluded that there existed no perceptible concern about competition. So commercial wisdom जो है exhibitors की is largely driven by consumer demand. So जब तक कि unless harm to competition was apparent, any intervention on its part would only lead to undesirable consequences. So ऐसा कोई अभी action नहीं लिया गया है as far as Competition Commission of India is concerned. Light emitting diodes, price at the light sources. So LEDs की हम बात करते हैं. LEDs, light emitting diodes, they are more efficient, helps in saving more energy. When we talk about the जो conventional bulbs हम use करते थे, so fluorescent lamps जो हैं उसमें we use these LEDs. So even in red lights also we use the LEDs, which are again saves on energy. Advantages of LEDs according to Moore's law. So the number of transistors on a chip would double every 2 years. Similarly, improvements to LED since 1970 have followed the Hayes law. So Hayes law बोलता है कि for a given frequency of light, cost per unit light of the LED it will drop by 10 times, and the amount of light ये produce करेगा it will increase by 20 times every decade. Because again जो scientific evolutions होंगे, technological evolutions होंगे with the help of research and development. Then gallium nitride is a fragile and quickly becoming a powder in the process used to create crystals. So this is the thing जो again LED में use होता है. तो 3 primary colors है LED में, red, green and blue. एंड अभी रिसेंटली हम बात करें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एलईडी की, हम माइक्रो एलईडी भी यूज करते हैं एंड हम ओ एलईडी भी यूज करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स. Yes. OLED TV screens are also there. So combination of LEDs के through we are having such types of advancements even in the TVs. So Iran says it attacked Israel's spy headquarters in Iraq. IS in Syria. ये हमने cover कर लिया. So this is the Gerlache Strait, separates the Palmer Archipelago from Antarctic Peninsula. तो ये important है factual information for prelims. Business page, ये हमने starting में बात कर ली about Kabul, lithium deal with Argentina, critical and strategic mineral. So we can see कि mining and minerals are also two important pillars for India for the growth. Center to extend the import of the edible oil on lower duty. So this would be again a प्रॉब्लम हो सकती है डोमेस्टिक सेक्टर ग्रोथ के लिए, क्योंकि लोअर ड्यूटी है तो जो एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे उसका प्राइस और भी कम होगा. तो डोमेस्टिक मार्केट में एक चीपर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होने की वजह से जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो सकता है. डेविस मीट बात कर चुके हैं. Born in Korea, raised in Spain, booming in France. तो Kangen story. Okay, we can start with one small conclusion as directed by sir. द हिंदू में हमने फर्स्ट डिस्कस किया है जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस के रिगार्डिंग पीएम जनमन स्कीम पीवीजीटी के लिए. उसके बाद हमने डिस्कस किया था बीपीआरडी जो कि क्रैश कोर्स स्टार्ट करेगी जो न्यू क्रिमिनल लॉ है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था बीसीएस जो कि सिविल एविएशन के लिए जो रिकमेंडेशन बनी थी पांडे कमेटी की. उसके बाद हमने डिस्कस किया था शेड्यूल 10 किस तरह से उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है. इसके अलावा साइंस एंड टेक में हमने डिस्कस किया था आईसीएमआर ने जो स्टार्ट किया था कि डायग्नोसिस के रिगार्डिंग. सेकंड हमने डिस्कस किया था एलईडी कि किस तरह से
लाइट इमिटर डायोड का यूज किया जाता है। थर्ड, साइंटिफिक कम्युनिकेशन इन इंडिया। अगर हम ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि लद्दाख रेंज में लद्दाख में जो हिमालयन रेंज है उसके रिगार्डिंग, और कूनो में जो चीता है उनकी डेथ हो रही है उसके रिगार्डिंग। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने डिस्कस किया था जियो पॉलिटिकल, इन बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए थे उनके क्या रिजल्ट है। उसके अलावा जो ताइवान, चाइना और यूएस के अंदर जो देखने के लिए मिलता है उनकी इन्वॉल्वमेंट। That's all. We can move forward to Indian Express. था कि पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर, नारकोटिक्स अकेडमी जो कि आंध्र प्रदेश में है, पाला समुद्रम सीमा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क यानी कि बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और नारकोटिक्स जो अथॉरिटी है उसका उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बात की कि राम सुशासन, जो कि हम देखते हैं कि गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे। उसके अलावा उन्होंने बताया कि राम राज्य के जो स्तंभ है वो 4 स्तंभ है, जिसमें है कि कोई भी व्यक्ति को सिर झुकाकर रखने की बात नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था देखने के लिए मिलती है उनमें सबको बराबरी के होना चाहिए, उस रिगार्डिंग कहा गया है। दूसरी बात में उन्होंने कहा था कि न्याय, सभी को न्याय मिलना चाहिए। तीसरी बार उन्होंने कहा है कि सभी के प्रति व्यवहार का सम्मान होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि जो कमजोर है जिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। और धर्म सर्वोपरि है, जो कि न्याय सबको मिलना चाहिए, समान स्तर पर मिलना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि इंटरनेट और सिम कार्ड के बिना भी मोबाइल पर देखी जा सकेगी वीडियोस। ये जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है, जिसमें वो D2M यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल एक तकनीक तैयार की गई है, जिसमें आप बिना सिम कार्ड के, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के, आप जो अपने फोन में सभी वीडियो देख सकते हो या एजुकेशन से कनेक्ट कर सकते हो। जो भी इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली सुविधाएं हैं वो की जा सकती है। इसमें जो तकनीक प्रयोग की जाएगी वो है एंटीना की तकनीक। जिस तरह से पहले के टाइम में या फिर जो अब भी हम देखते हैं कि एंटीना के माध्यम से डिश लाकर टीवी पर हम किसी भी तरह के प्रोग्राम देख सकते हैं, उसी तरह को मोबाइल में चिप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब हम एंटीना तकनीक का प्रयोग की बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसको रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि मशीन एनर्जी के अंदर आता है। कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसको मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर कर हमें वो जो ब्रॉडबैंड के थ्रू जो नेटवर्क सेवाएं मिलती हैं उनको प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। इससे ये होगा कि जो इंटरनेट का यूज है और जो ट्रैफिक वहां देखने के लिए मिलता है वो कम हो जाएगा। और जो डाटा प्लान पर जो खर्च किया जाता है या फिर जो सामान्य व्यक्ति तक पहुंचने में असमानताएं देखने के लिए मिलती है वो कम हो जाएगी। अभी इनका ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, जो आगे अगले साल तक स्वास्थ्य शिक्षा को इसके साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि जो 70 से 75% डाटा यूज किया जाता है वो इसी तकनीक के माध्यम से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जहाँ पे इंटरनेट के ऊपर आप कॉलिंग सर्विसेज को अवेल करते हो। तो यहाँ इंटरनेट के बिना सर्विस यूज करने की बात कही गई है, इसीलिए तो उसको D2M डायरेक्ट टू होम की बात कही गई है कि बिना इंटरनेट के भी आप वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल में जो इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। हाँ, ये हमने पहले भी कवर किया है टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन की बात है, यहाँ पर बताया गया है कि लीवर, एक कामनी नाम की एक व्यक्ति थी, उन्होंने अपने लीवर को और किडनी को और कॉर्निया को डोनेट कर दिया है। उनके डोनेशन से पहले अपेनिया टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में ये है कि मॉनिटर किया जाता है कि आपकी हार्ट बीट, लंग्स, ब्रेन एक्टिविटी को, ब्रेथिंग पैटर्न को, कि किस तरह से आपके जो बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है, या फिर ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है उसके अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं इंडिया में ब्लड ऑर्गन डोनेशन काफी कम उसमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस तरह की मुहिम को और बढ़ाया जा सकता है ताकि उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिले। दाल और खाद्यान्न तेल उत्पादन की चुनौती। जब हम पल्सेस और एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि
भारत उसमें आत्मनिर्भर नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में आयात पर, इंपोर्ट पर निर्भर है। तो उसको किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि ये देखा गया कि कहा गया था कि 2028 तक भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा दालों, पल्सेस में और एडिबल ऑयल में, जिस तरह से वे गेहूं, धान और गन्ने की बाकी सारी फसलों के ऊपर है। लेकिन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि अभी तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। जब हम देखते हैं एडिबल ऑयल्स में, तो 164.66 लाख टन आयात होता है, जो कि 2022-23 की बात की जाए तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है। तो उसको किस तरह से कम किया जाए, या फिर इसके लिए क्या स्टेप लिए गए हैं। इसे में देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, यानी कि जो नाफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केट फेडरेशन, जो 1958 में बनी थी, उनके द्वारा जो भी फसल को बोएगा उनको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वो एक पंजीकृत, यानी कि जहाँ वो ऑलरेडी रजिस्टर है, वहां पर अपने फसलों को बेच सके, जिसके लिए सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड, यानी कि जो कंज्यूमर फेडरेशन कॉपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड है, उनके साथ उन्हें कनेक्ट किया जाएगा, ताकि उचित मूल्य मूल्य उन्हें मिल सके। लेकिन इसमें उनके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि इन्हें यहीं बेचना है। अगर वो चाहते हैं कि वो कहीं और जाकर आड़त पर या फिर खुले बाजार में बेचे, तो वो वहां भी बेच सकते हैं, ताकि उन्हें जो मूल्य चाहिए वो उन्हें मिल सके। इसके अलावा जब हम दूसरी तकलीफ वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, तो वह है कि अरहर, जब हम अरहर की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। उसके रीजन है कि जिस तरह का मौसम उन्हें चाहिए, या फिर उन्हें जो जिस तरह की जमीन चाहिए, उसकी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मेहनत है। लेकिन जो और दिक्कतें हैं, जैसे कि मौसम की वजह से अधिक गर्मी या अधिक शुष्क, या तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है या बहुत ज्यादा गर्म हॉट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो फसल बर्बाद हो जाती है। या फिर जो जानवर है, जंगली जानवर है, वो खराब कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो किसान है वो उनको नहीं बोते। ये दूसरे रीजन देखने के लिए मिलता है। जब हम देखते हैं कि जो न्यूनतम समर्थक मूल्य, जो कि एमएसपी है, पिछले 10 वर्षों में जिसकी दुगना हो गया है, जो कि 2013-14 से लेकर 2022-23 तक देखा जाए तो 1.92 करोड़ टन से 2.605 करोड़ टन हो गया है, जो कि दुगनी वृद्धि देखी जा सकती है। तो इसको किस तरह से कम किया जाए, या फिर किस तरह से इसको मापा जाए। जो वनस्पति तेल का आयात दुगना हो रहा है, यानी कि जो हम वेजिटेबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, वो भी दुगने से अधिक देखने के लिए मिलता है। करीबन 60% हम देखते हैं कि हम आयात पर निर्भर है। तो उस जो जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, उसको किस तरह से कम किया जाए। जब हम देखते हैं कि किन राज्यों में दलहन, जो कि एडिबल ऑयल है, या फिर जो पल्सेस है, उनका उत्पादन होता है, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर हमें राजस्थान देखने के लिए मिलता है, जो कि कुल प्रोडक्शन का 9.53% करता है। उसके अलावा हम देखते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हमें पल्सेस और एडिबल ऑयल से रिगार्डिंग जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन वो समय ज्यादा लेते हैं, उनमें जो है मेहनत ज्यादा है। उसके अलावा भी जो जंगली जानवर है, वो उसको बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए इन सभी के ऊपर, जैसे पीएम फसल बीमा योजना है, जो कि 2018 में आई थी, जो स्टार्टिंग में सिर्फ खरीफ की फसलों पर थी, बाद में उसके आयाम को बढ़ाया गया, खरीफ और रबी दोनों में किया गया। इस तरह से उसके अंदर दालों को और शामिल किया जा सकता है, ताकि अगर इस तरह की जब देखने के लिए मिलता है तो उन्हें फसल का बीमा मिल सके। इसके अलावा जो पशु है, आवारा पशु है, उनके लिए कुछ प्रावधान किया जा सकता है, ताकि वो फसलों को ना बिगाड़े। या फिर उनके अलावा जो बोने में मेहनत लगती है, उसके लिए कोई सुनिश्चित कार्रवाई की जा सकती है पंचायती स्तर पर। उसके अलावा जो हम देखते हैं, जो मानसून है वो भी प्रभावित करता है। जब इंडिया में मानसून की बात करते हैं तो केरल पर आता है, केरल के तट से आरंभ होता है। उसके अलावा जिन क्षेत्रों में ये बोई जाती है, वहां पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी कि जो हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु से होते हुए, उसके बाद जो जनवरी फरवरी या फिर उस टाइम पर देखने के लिए मिलता है, अगस्त अक्टूबर में जो बारिश देखने के लिए मिलती है, वो भी इन फसलों को नुकसान करती है। तो उस नुकसान को किस तरह से कवर किया जाए, कि या फिर किस तरह का जो मौसम है उस किस तरह के उसने बोया जाए। क्योंकि एक रीजन ये भी है कि जब हम भारत का पूरा नक्शा देखते हैं, तो वहां पर अलग अलग प्रकार का मौसम है, जमीन है, तो किस तरह से इतना सक्षम हुआ जाए कि उनको वहां पर उगाया जा सके। तो इन्हीं सभी के लिए हम देखते हैं कि भारत जो है वो
प्राकृतिक या फिर पुरानी खेती को ही फॉलो करता है। उसके अलावा उसमें हम ये कर सकते हैं कि तकनीक के उपयोग को बढ़ा सकते हैं। जिला स्तर पर जो है प्रशिक्षण दिया जा सकता है कि किस तरह से नई तकनीकों को अपनाया जाए, जिनके माध्यम से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, जो किसान है वो भी उसके अंदर रुचि पैदा करेंगे, अगर उनकी जो नुकसान है वो कम होगा तो। शुरू में एमएसपी ज्यादा रखा जा सकता है ताकि किसानों को इस तरफ आकर्षित किया जा सके। उसके अलावा जो सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी होगी अगर तिलहन और दलहन जो कि एडिबल ऑयल और पल्सिस का प्रयोग उत्पादन बढ़ेगा, तो जो इंपोर्ट की तरफ पैसा जाते हैं, खर्च होते हैं, उसको हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो आयात में पैसे जा रहे हैं उसको हम किसान की आय को दुगनी करने के लिए लगा सकते हैं। तो वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है ताकि इंडिया जो है वो इनकी डिपेंडेंसी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सके। एंड दो आपको और लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं। एक तो है ऑयल प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं इंडिया में। एंड उसके बाद हम जो स्टोरेज फैसिलिटीज है एडिबल ऑयल के लिए, कि उनको कोल्ड एंड डार्क प्लेसेस में स्टोर कर सकते हैं आप, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। उसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं जो अरहर है, जो इस तरह की फसलें हैं, जो उनकी जड़ें होती है वो कम पानी में भी उग सकती है, और जो उनके पत्ते जब जमीन पे गिरते हैं तो उनकी वजह से उर्वरकता शक्ति, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो बढ़ जाती है। तो उससे जो फर्टिलाइजर की यूज है वो कम होगा, उससे भी किसान की आय को फायदा मिलेगा। और जो रासायनिक जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो कम होंगे, तो जो प्रोटीन या फिर जो चीजें खाने में होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम देखते हैं काफी बार इंपोर्ट में भी रोक लगा दी जाती है कि प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन नहीं है, तो वो बढ़ेगी, तो उसकी वजह से भी फार्मर की इनकम पर इंक्रीज होगी, तो उस चीज को भी बढ़ाया जा सकता है। और लैंड यूज होएगा, अगर लैंड के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग करेंगे तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। कल्पमेदा, समाज की खुशहाली सुरक्षित रखने के लिए एक ही उपाय है कि लोग अपने मन मस्तिष्क का सफलतापूर्व उपयोग करके दिखाया जाए। हेलो, स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करने दिया जाए। स्वतंत्रतापूर्व उपयोग करने दिया जाए। इसमें आप अब मानसिक हाँ, बोलो यहाँ पे प्रेरणा। हम बात कर सकते हैं कोई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 है, बट एट द सेम टाइम जो हम राइट टू डिसेंट की भी बात करते हैं जिसपे